It can be always integral multiple of the charge of the electrons. Any body cannot have the charge that is, let me explain you. Okay. So if I'm considering that any body cannot have the charge, like we have Q is equals to N into E. Q is equals to N into E. So here N should be a whole number, a natural number. So if I'm considering any body, कि मैं बोलूं कि कोई एक बॉडी है जिसके पास चार्ज जो है वो इस फॉर्म में, that is 2/3 E. Okay, then it will not be considered as we will not consider that here N is not a natural number. So we'll consider that this cannot be the charge of an electron, because ये चार्ज कब आएगा किसी भी बॉडी पर, जब उसने 2/3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया हो या 2/3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया हो. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मतलब है कि उसने 2/3 E का मतलब हुआ कि उसने 2/3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया हो, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब है कि 2/3 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हो. तो 2/3 इलेक्ट्रॉन कभी गेन हो नहीं सकते, या 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो सकते हैं या फिर 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो सकते हैं. कंप्लीटली ये वैल्यू नहीं हो सकती, यानी फ्रैक्शन में वैल्यू जिसमें कंप्लीट होल नंबर ना हो वो वैल्यू नहीं हो सकती. So we will consider that the charge on an object is always integral multiple of charge of an electron. Okay. So here we have some questions and let's do that question first. Hello, sir. Hello Kevin, how are you? I'm fine, sir. How are you? I'm also fine. Good evening, sir. Good evening, beta. How are you? Fine. So Tanishka, where were you from last 2 or 3 classes? Sir, I have some sort of allergy, so I was not so well. So I took some days off. Okay. Yes, sir. So if I'm talking about this one, tell me if I'm writing this. This is the question here. A current of 1 ampere is drawn from a filament of an electric bulb. It is a question from the NCERT examiner. A current of 1 ampere is drawn from a filament of an electric bulb. Okay, there is an electric bulb. Let me explain you here that there is an electric bulb. Okay, कंसिडर कर लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना ही क्या, उसमें से इलेक्ट्रॉन उससे इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है. ठीक है, पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट से पास कर रहे हैं इन 168 सेकंड्स में. ओके, 1 एम्पियर करंट इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द, आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे 168 सेकंड्स में इन रफली, यानी उससे 168 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे ये आपको बताना है. रफली वो इस ऑर्डर में होगा, इसमें कि इसमें कि इसमें. ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए. तो वी हैव द फॉर्मूला दैट I is equals to Q by T, and we have this formula that N is equals to, sorry, Q is equals to N into E. Okay, N into E. We have these two formulas. Now it is being asked that how many number of electrons will pass through it. So अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या होता है, 1 एम्पियर करंट का मतलब होता है कि जब एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास कर रहा है, सो हम बोलेंगे कि वो 1 एम्पियर कूलम बात कर रहा है. 1 यानी कि 1 एम्पियर करंट का मतलब होता है कि in every 1 second we are passing 1 कूलम चार्ज थ्रू इट. 1 एम्पियर कब आएगी, जब Q by T की वैल्यू इसमें भी 1 हो और ये भी 1 हो, तो 1 by 1 देन यू विल गेट 1 एम्पियर. सो हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर का मतलब हुआ कि आपको हर सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करना है. सो आपको एक्चुअली में कितना पास करना है, 168 सेकंड तक पास करेंगे. तो बताइए आप कितना कूलम चार्ज पास होगा 168 सेकंड में. So for better understanding, you can write this, you can place this value of Q in this portion, and you can get that I is equals to NE by T. Here I is the current
that is 1 ampere. N is the number of electron, okay, and E is the charge of an electron, that is 1.602. 1.602 तो बस 1.6 ही कंसीडर कर लीजिए उसको, into 10 raised to the power minus 19 upon time is 168. So here you will find that N would be equivalent to, ये इस तरफ चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो you will get 168, okay, upon 1.6 into 10 raised to the power minus 19. Now what would be the roughly answer? What would be your roughly answer? सर क्या आप फिर से समझा सकते हो? बिल्कुल, हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, I is equals to Q by T, I is equals to Q by T and Q is equals to N into E. ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है. The rate of flow of charge is called electric current and Q is equals to N into E हमारे पास होता है फार्मूला. ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, दो फार्मूला हम लोगों ने पढ़े हैं. Where Q is the charge, ये Q कैपिटल Q और स्मॉल q दोनों में यहाँ पे सेम ही कर देता हूँ ताकि कंसिडरेशन में आपको वो ना लगे. सो इस फॉर्मूले में अगर मैं Q की जगह पर NE रख दूं तो कोई दिक्कत होगी बेटा यहाँ पर? If I plus, so you can write here I is equals to N into E by T. लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर, यस सर. अब ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 एम्पियर, टाइम आपको गिवन है, E की वैल्यू सबको पता होती है, दैट इज 1.6 into 10 power minus 19. N की वैल्यू निकालनी है. सो मैंने 1 की जगह पर, I की जगह पर 1 लिखा, टाइम की जगह पर 168 लिखा, N को N ही रहने दिया और E की जगह पर मैंने 1.6 into 10 power minus 19 लिखा. ओके, गॉट इट? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो. No, Then sir. N will be equivalent to 1 into 168. This N will goes to that side and 1 is being multiplied, this one you will get 168 and this will comes down, so you will find it. आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको N इधर लिख सकता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि N is equals to ये पोर्शन नीचे आ गया है और ये पोर्शन ऊपर चला गया. सो अब आप इसको सॉल्व करना है. अब आप बताइए मुझे कि N की वैल्यू कितनी होगी अप्रोक्सीमेशन, आप इसमें से कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे? बोलिए. चलिए मैं हेल्प करता हूं. अब आप इसको क्या लिखेंगे, यहां से आप एक डेसिमल हटा लीजिए और यहां पर आप 10 कर दीजिए. ओके, अब आपको पता है कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 16 टेंजा होता है 160. ओके, यानी 16 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 16 2.0 करके यानी आंसर आएगा. अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 168 को 16 से, तो you will get here that it would be 16 ones are 16 then 0, then in the 8 you cannot read the table because it is greater, so you have to put the decimal here. Okay, sorry 0 लगाना पड़ेगा आपको. और वैसे भी पता है कि 16 10 करके समथिंग करके आंसर आएगा क्योंकि 16 से ज्यादा बड़ा है, मतलब 16 10 जो होता है 160 होता है, 10 पॉइंट समथिंग करके आंसर आएगा. कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि कभी आप गड़बड़ कर जाओ. एक डिजिट यहाँ पर आ चुका है, उसके बाद आप इसको फिर यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे एंड देन यू विल गेट 80 एंड देन 5 10.05. ठीक है, या फिर आपको और कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको और आसानी से ऐसे कर सकते हैं कि पहले इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए या 4 से या 8 से. 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 16, 4 4 16 and 4 2 42. Then when you divide it further you will get 21/2 and when you divide it further you will get 10.5. So आपका जैसा दिल चाहे वैसे कर लीजिए. तो you will get 10.5 into 10, एक पहले से 10 यहाँ पर लगा हुआ है, अपॉन 10 raised to the power minus 19. अब बताइए कितना आएगा, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर 1 है तो ये रहेगा 10.5 into अब बताइए कितना आंसर आएगा? 10 raised to 18. 10 raised to the power, ये पॉजिटिव ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 10 raised to the power पॉजिटिव 19 हो जाएगा. Mhm. इंटू 10 की पावर 1 पहले से ही है तो इट विल बिकम 10 की पावर 20. 20. Okay.
अब इसमें 10 की पावर 20 हम लोग को गिवन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में अगर मैं इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लिखता हूँ तो आई विल गेट द वैल्यू एज 1.05 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 21। बट सिंस यहाँ पर 20 ही दे रखा है तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे यहाँ से, ओके। रफली समझ आया? सर शुरू से समझा सकते फिर से? शुरू से? हाँ सर। Q इज इक्वल टू NE होता है और I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, ये दो फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन में कह रखा है कि एक करंट, 1 एम्पियर करंट जो है वो फिलामेंट से ड्रॉन होता है। 1 एम्पियर करंट का मतलब हुआ कि 1 कूलाम चार्ज आपका हर सेकंड फ्लो करेगा। I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। सो 1 एम्पियर करंट कब होता है? जब 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज पास होता है, तो उसको हम लोग 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। तो आपको 168 सेकंड तक फ्लो करना है, तो कितना चार्ज हो जाए, कितना चार्ज फ्लो होगा? 1 सेकंड में 1 कूलाम, तो 168 सेकंड में 168 कूलाम चार्ज पास हो जाएगा। 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ? 1 एम्पियर का मतलब होता है कि when 1 कूलाम चार्ज passes through a conductor for the time 1 second, we consider it as 1 एम्पियर करंट। तो आपके पास 168 दे रखा है। तो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई हमारे पास टोटल चार्ज जो है, अगर 1 एम्पियर करंट एक सेकंड में, यानी 1 एम्पियर करंट पास करता है 1 सेकंड में, इसका मतलब हुआ कि 1 एम्पियर करंट का मतलब होता है कि 1 कूलाम चार्ज इज पासिंग पर सेकंड। सो फॉर 168 सेकंड इफ इट इज कंटिन्यूअसली पासिंग, देन इट विल क्रिएट 168 टोटल कूलाम चार्ज आपका पास हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, आपका 168 कूलाम चार्ज पास हो चुका है, ओके। अगर 168 कूलाम चार्ज पास हो चुका है आपका 168 सेकंड में, तो टोटल चार्ज आपके पास जो है वो 168 है कूलाम। और आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E। सो आप 168 को डिवाइड कर दीजिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। इसको जब आप डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू 168, ठीक है। एक डेसिमल हटाएंगे नीचे, सो यू विल गेट, ऊपर एक 10 आ जाएगा, इंटू 10 अपॉन 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19। नाउ व्हेन यू डिवाइड दिस वन, यू विल गेट 10.5, 10.0, हाँ 10.5 आपका आंसर आएगा जब आप 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो, ओके। अब ये पावर जब ऊपर चली जाएगी तो यू विल गेट 10.5 इंटू 10 की पावर 1 पहले से है, ये ऊपर जाएगी तो +1 हो जाएगी, +19 हो जाएगी। तो +19 इंटू 10 की पावर 1 पहले से है, तो मिलकर के हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर 20, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाती हैं। 10 की पावर 20। सो व्हेन यू राइट इट दिस, यू विल गेट 10 पॉइंट, एक डेसिमल आप पीछे ले जाइए। स्टैंडर्ड यूनिट में लिखने के बाद हमेशा एक डिजिट बाद डेसिमल होना चाहिए। सो यू विल गेट 10.05 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 21। बट द आंसर इज गिवन 20, देन 23, 18 और 17। तो हमारे पास आंसर जो होगा वो हम लोग इसको टिक करेंगे, ओके। गॉट इट? यस सर। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट? No, sir. चलिए एक क्वेश्चन करके और दिखाइए मुझे पहले। सर मैं वो लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं। बिल्कुल लिख सकते हो, कॉपी करें फटाफट से।
डन सर। देन ओके, हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड, ठीक है, कि क्या क्या कंडीशंस होंगी जब आप किसी एक करंट को फ्लो करते हैं कंडक्टर के अंदर। थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि जब हम लोग किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो करते हैं, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ कंडीशन दैट यू नीड टू फ्लो द वाटर इन अ पाइप। एक पाइप में जो वाटर फ्लो करते हैं, आपको पता है कि जब एक करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि वी नीड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग को फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो सपोज कीजिए कि मैंने यहां पर ऐसे एक कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली फ्लो कर रहे हैं, रैंडमली दे आर फ्लोइंग। कोई इस तरफ मूव कर रहा है, कोई ऊपर, कोई इस तरफ, कोई इधर, कोई नीचे, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, कहीं भी मूव कर रहे हैं। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका जो नेट इफेक्ट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे इसका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला जो है वो इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इस वाले से, तो अलग अलग हमारे पास जो है वो कैंसिलेशन हो जाते हैं। तो इनकी एनर्जी हम लोग एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं कर पाते, एनर्जी होती नहीं, यानी कि जब उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है तो यह हम बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी कोई भी रैंडम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं तो उनके पास जो एनर्जी होती है वो जीरो कंसीडर कर लेते हैं, यानी क्योंकि उनके पास वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास है क्या? तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी किसी एक पर्टिकुलर, यानी कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस वक्त जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग, यानी इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उनके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, और उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कंसीडर कर सकते हैं, यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन, यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो कुछ उसके पास एनर्जी होती है और उसको हम लोग अपने काम में ले लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है तो हमारे पास रैंडम डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब इसमें करंट फ्लो हो रहा होता है तब हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, यानी जब उसमें करंट फ्लो होगा, या हम बोलेंगे करंट तभी फ्लो होगा जब इलेक्ट्रॉन्स किसी एक रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऐसे करंट नहीं माना जाएगा, ऐसे करंट कैंसिल आउट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन तो तभी, इलेक्ट्रॉन हर वक्त मूव करते हैं चाहे उसमें करंट पास हो कि नहीं हो, लेकिन करंट जब हम बोलेंगे the current will be considered when the electron start moving in a particular direction। अब जस्ट इमेजिन, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग एक कंडीशन को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक पाइप है एंड वी आर हैविंग सम ड्रॉपलेट इन इट, वाटर ड्रॉपलेट, ओके, वी आर हैविंग सम वाटर ड्रॉपलेट इन इट। हाउ, व्हाट विल यू डू टू मेक दिस वाटर ड्रॉपलेट कमिंग टू दिस एंड? आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? टेल मी, what will you do if you want these droplet to come in a particular point? You will tilt the pipe, आप इसका एक एंड ऊपर एक एंड नीचे कर देंगे तो these droplet will start coming down। बोलो ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? Yes or no? Yes, sir. Okay, so what you are actually doing here is you are creating the one end of the pipe at the higher potential and another end at the lower potential, means you are creating a potential difference between the 2 points of the pipe, and that will result in flow of drop in the pipe में drop का movement हो जाएगा। okay, अब इस तरह से अगर मैं एक कंसिडरेशन ले लेता हूं कि अगर आपने ग्रेविटी पर तो इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने पाइप को वर्टिकल रखा और पाइप को आपने ऐसे रख दिया तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दे विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस, नो, ऐसा तो नहीं सकता। तो फिर वायर में ये काम कौन करता है? हु डिड दिस वर्क इन द वायर, कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, जो अपनी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। Who did this? Who will make this end at the higher potential and this end at the lower potential? So that is done by the battery, the source, the battery. The battery has two ends. One is at the higher potential and another one is at the lower potential. So when this end is connected with positive and this end is connected at the negative, then these electrons will start moving in a particular direction that will be from positive to negative.
सो जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे किससे, एक पोटेंशियल डिफरेंस से, सो दीज इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट, यहाँ पर मैंने प्लस से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने इसको माइनस से कनेक्ट कर दिया, दीज इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा कंडक्टर में वो जनरेट हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट कब जनरेट होगा, जब आपने इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराया, यानी इस ये पहले कुछ इस तरह से मूव कर रहे थे, नाउ आफ्टर प्रोवाइडिंग द पोटेंशियल difference across the ends of the wire, the electrons leave their random direction and start moving in a particular direction from positive to negative, मूव करना शुरू कर देंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी ये इलेक्ट्रॉन अब एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी इनके पास मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की, एंड दीज विल हैव सम एनर्जी, और इसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। द करंट विल स्टार्ट एंड द करंट विल जनरेटेड, करंट इज जनरेटेड इन द कंडक्टर। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो करंट जनरेट हो जाएगा। अब जब करंट जनरेट हो जाएगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए, सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर ऑफ चार्ज, सो वी कैन से दैट इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एक्चुअली वी कैन से दैट द चार्ज इज फ्लोइंग। इनडायरेक्टली हम लोग यही बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिस्किट का ट्रक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक बिस्किट का पार्सल आने वाला है किसी एक जगह से और वो ट्रक में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ट्रक मूव कर रहा है तो मतलब बिस्किट का पार्सल भी मूव कर रहा है। तो सिंपल बात है, अगर इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर ऑफ चार्ज, एंड इफ वी आर सेइंग दैट चार्ज इज फ्लोइंग, तो इट मींस इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग। या फिर हम बोल सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो चार्ज भी फ्लो कर रहे हैं। सो इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब होता है तो चार्ज का फ्लो होता है, और चार्ज के फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं। सो वी कैन सिंपली से दैट कि जब आप इसको एक हायर पोटेंशियल यानी एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ये दीज इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग एंड बिहेव लाइक दिस, इस तरह से बिहेव करते हैं कि एक एंड उसका हायर पोटेंशियल, दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल पर हो जाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एंड हायर पोटेंशियल है और ये एंड लोअर पोटेंशियल है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे? बिल्कुल नहीं मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम लोगों ने आर्बिट्री चूज किया है, क्योंकि पहले हम लोगों ने पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर ऑफ करंट, तो हम लोग मानते थे कि हर चीज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती है, हर चीज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब हायर पोटेंशियल, हम लोगों ने इसको मान लिया कि दिस इज द हायर पोटेंशियल एंड दिस इज द लोअर पोटेंशियल। तो करंट की डायरेक्शन जो मानते हैं हम लोग, वो मानते हैं कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर, क्योंकि हर चीज हमारी हायर से लोअर की तरफ मूव करती है। तो हम लोग मान लेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, दैट इज हायर टू लोअर। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर जाए? कभी भी नहीं मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज होता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, नेगेटिव तो रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो हम लोगों ने ये माना है कि करंट की जो डायरेक्शन होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट is from positive यानी higher potential to negative यानी lower potential की तरफ होती है। लेकिन ठीक है, ये तो करंट की ओरिजिनल डायरेक्शन जो होनी चाहिए थी, ये हम लोगों ने चेंज नहीं करी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही करंट मूव करता है। लेकिन बाद में जब हम लोग को पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स के जाने की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से करंट फ्लो करता है, तो हम लोग को इसको नेगेटिव कर देना चाहिए था, इसको पॉजिटिव, लेकिन हम लोगों ने वैसे ही रखा, हम लोगों ने इसको चेंज नहीं किया। हम लोगों ने बोला कि फिर हम लोग को सारी कैलकुलेशन, सारी थियरीज में सब कुछ चेंज करना पड़ता, तो हम लोगों ने बोला कि करंट की डायरेक्शन वही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और हम लोग इसके लिए एक वर्ड बोल सकते हैं इट इज अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। अब हम लोग ये मान रहे हैं ना, हम लोगों ने मान लिया कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को हम लोग अजम्पशन लेके मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अगर हम लोग अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि भाई ऊपर जाने पर जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो नीचे आने पर नेगेटिव हो जाएगी, अगर नीचे आने पर पॉजिटिव है तो ऊपर जाने पर नेगेटिव हो जाएगी। सो ये तो हमारी आर्बिट्री, हम लोग की खुद की वो है कि अगर मैं मानता हूं कि इस डायरेक्शन में मैं वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, तो बाय चॉइस है। सो अगर मैंने यहाँ पर मान लिया कि हम लोग ने मान लिया कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट,
तो हम लोग मान सकते हैं कि हम लोग अपनी करंट की डायरेक्शन जो है वो वही रखते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स आर, द करंट इज मूविंग, यानी आई की जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, ठीक है, दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ आई। बट एक्चुअल में अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू positive terminal. Electrons are moving from negative to positive and the current is moving from positive to negative. So हम लोग बोल सकते हैं direction of current is from positive terminal to the negative terminal or higher potential to the lower potential, or we can say that it is opposite to the flow of electrons. समझ आया सबको? किसी कोई डाउट है? No, sir. ये आर्बिट्री चूज करना था तो चूज कर लिया, बात खत्म। क्योंकि हम लोगों ने पहले से करना था तो इसको फिर इसके चक्कर में हम लोग को बहुत सारे लॉज हम लोग को दोबारा से करने पड़ते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत जगह पर हम लोग को करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिज्म की साइकिल वगैरह बहुत सारी चीजें हम लोग करंट की डायरेक्शन को मान करके करते हैं, तो फिर हमारे सारे रूल्स गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने वही रखा, बस ये मान लिया कि ठीक है भाई करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं उसी से करंट फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द कंडक्टर, यानी सॉलिड चीज के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया कि ठीक है करंट की डायरेक्शन वही रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट मान लेंगे। ओके, गॉट इट? इज देयर एनी डाउट? गॉट इट बेटा? Yes, sir. ओके, सो मूविंग टू दिस, तो हम लोग को दूसरी चीज क्या चाहिए बेटा? पहली चीज हम लोग को चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यानी कंडक्टर के अंदर जब रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उसमें हम लोग दे आर कैंसिलिंग देयर इफेक्ट, सो वहां पर कोई इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा देंगे तो एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा, और करंट जनरेट होने के लिए आपको उसका एक एंड हायर पोटेंशियल और दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल पर करना पड़ेगा, तभी करंट जनरेट होगा। सो उसके लिए वो कौन करता है, एक हायर पोटेंशियल पर एक लोअर पोटेंशियल, दैट इज डन बाय द बैटरी। ओके, सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि बोथ द एंड्स आर द सेम पोटेंशियल। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर दोनों एक ही एंड पर है, तो यहाँ पर कोई सेम पोटेंशियल पर है, तो यहाँ पर कोई कंडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर एक एंड आपने हायर पोटेंशियल पर कंसीडर कर लिया, दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल पर कंसीडर कर लिया, तो द वाटर ड्रॉपलेट विल स्टार्ट फ्लोइंग। सो हम लोग लिखेंगे व्हाई डू द ड्रॉप ऑफ द पाइप बी स्टार्ट मूविंग। सिंपल सी बात है, because we can say that one end of the pipe is at higher potential and another end is the lower potential, so it is start moving. Okay, can the electron flow in the conductor if one end of the अगर हम लोग ऐसे एक एंड को हायर पोटेंशियल पर कर दें और दूसरे को लोअर पोटेंशियल पर रख दें, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, यानी ग्रेविटी के उस पर नहीं होगा कि आप एक ऊपर हाइट पर वायर को रख दें, एक एंड उसका ऊपर रख दें और दूसरा एंड नीचे रख दें, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर जाएंगे। नहीं, आपको बैटरी की ही जरूरत पड़ेगी। समझ आया? कोई डाउट इसमें? फिर से बोल सकते सर? मैं फिर से बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आप अगर चाहें कि इफ यू आर कंसिडरिंग कि कैन द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अ कंडक्टर इफ वी कीप वन एंड, यानी एक एंड आप इसका हायर पे रख दीजिए वायर का और एक एंड आप लोअर, यानी कि आप ऐसे सोच लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपने अपनी छत पर या रूफ पर या टेरिस पर एक एंड रखा और दूसरा एंड आपने ग्राउंड पे रखा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी इसमें वायर में? नो ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता। इलेक्ट्रॉन विल नॉट बिहेव लाइक अ वाटर ड्रॉपलेट इन द पाइप। ऐसा नहीं होगा कि आपने ऐसे रखा है तो दे विल स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपको उसके लिए बैटरी की जरूरत पड़ती है। चाहे पाइप को आपको ऊपर से इलेक्ट्रॉन को अगर आपको अभी भी ऊपर पहुंचाना है, तो सिंपल सा आप इसका एक एंड हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव से कनेक्ट कर दीजिए, ये मूव करना शुरू कर जाएंगे। सो यहाँ पर आपको ये चीज कंसीडर करनी है, ये कुछ नहीं है, सिंपल सा एक वो है assumptions. Moving to the next part. दूसरी चीज क्या जरूरत होगी, तो हम लोग कहते हैं बैटरी इज अ डिवाइस दैट क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर। बैटरी या सेल वो डिवाइस होती है जो वायर के दो टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती है, और ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स अपनी रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, या हम बोलेंगे कि वो कोई इलेक्ट्रिसिटी उसमें जनरेट नहीं होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज कोई फ्लो नहीं होगा। सो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ रैंडम डायरेक्शन व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ रैंडम डायरेक्शन इन द कंडक्टर। अगर मैं कंसीडर करता हूँ कंडक्टर को, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक रैंडम डायरेक्शन में,
मैं यहाँ पे, लेकिन अगर मैं इसी को एक वायर से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, इफ आई एम कंसिडरिंग कि यहाँ पर एक वायर है, सो अभी ये मूव कर रहा है, लेकिन इसी वायर में ये दे विल स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मैन दे आर कनेक्टेड विद द बैटरी। मैंने यहाँ पर भी वही किया है कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास आई की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन मैंने लिखा भी यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं पिक्चर में कि दे आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो यहाँ पर बैटरी जब आप उससे कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। समझ आया? बैटरी का क्या फंक्शन होता है बताइए बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैटरी? बताइए बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैटरी इन अ सर्किट? इज देयर एनीवन? It creates a potential difference between the two Yes. ends. Yes, it creates the potential difference between the ends of the wire or a conductor. Okay. तो अगला सवाल है मेरा इसी में आपसे, इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से क्या होता है? What would happen if we create the potential difference between the terminals or end of the wires? क्या होगा अगर हम लोग एक कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर देते हैं तो फिर क्या होगा? बोलिए। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे जो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, दे विल स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट विल बी जनरेटेड। ओके, गॉट इट? Yes, sir. Got it, sir. Okay, now next question is the availability of free electron is also an important requirement for the conduction of। अभी सपोज कीजिए कि हमारे पास बैटरी है, अब बैटरी की जगह पर मैंने यहाँ पर बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये वायर में चेंज करके एक वुड लगा देता हूँ यहाँ पर, वुड, तो will the electron will able to flow? No. Why? Because there is no free electrons. So we need such type of device or we need such type of conductor that is going to have the free electrons. Suppose कीजिए आपके पास पाइप है और इस पाइप के अंदर आपने ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये आपने किसी चीज से चिपका दी, यानी दे आर नॉट एबल टू मूव नाउ, फिक्स कर दिया आपने। तो आप पाइप को अगर ऐसे कर भी देंगे, इसका एक एंड वन ऊपर और एक एंड नीचे कर भी देंगे तो वो मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट आर फिक्स, दे आर नॉट फ्री। तो इसी वजह से अगर मैं किसी कंडक्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल इफ आई एम कंसीडरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, लेट मी एक्सप्लेन यू कि सपोज कीजिए कि मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत जरूरी, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। इन डायमंड्स में अगर हम बात करते हैं तो डायमंड्स में हर एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है, 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है। सो आप देखेंगे कि एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। तो जब ये बॉन्डेड रहता है इस तरह से तो हम बोलेंगे कि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सबके सब बिजी हैं बॉन्डिंग में। लेकिन अगर मैं ग्रेफाइट की बात करता हूं तो ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स। So you will find that in this and this one, the carbon atom is bonded with 3 other carbon atoms. So 1 electrons of carbon is free, and this electron can move easily, help कर सकता है electricity conduction में. So that's why graphite is a good conductor of electricity, क्योंकि graphite में electrons free होता है, move करने के लिए free होता है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर wood लगा देता हूँ तो मैं कितना भी potential difference create कर लूँ, जब free electrons ही नहीं होंगे तो वो move ही कहाँ से करेंगे। तो हमारे पास availability of free electron is important। हम बोलेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन का होना भी जरूरी है, यानी आपके पास जो वायर है वो ऐसा होना चाहिए जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि आपने कुछ वुड का वायर बना लिया या कोई ऐसी चीज का नॉन मेटल का प्लास्टिक का वायर बना लिया और आप सोच रहे हैं कि उस वायर से आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, आप उसको बैटरी के टर्मिनल से भी कनेक्ट कर दे तब भी उसमें नहीं फ्लो होगा, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट दैट दीज वायर मस्ट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन सो दैट द इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इफ देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो करंट विल बी पास्ड आफ्टर यूजिंग द बैटरी, इवन आफ्टर यूजिंग द बैटरी, यानी अगर आपने बैटरी भी यूज कर ली तब भी ये नहीं होगा। गॉट इट? और स्टिल हैविंग सम डाउट? डन बेटा, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir.
Is there anyone who didn't understand the concept? Everyone understood? सर लास्ट वाला पॉइंट फिर से बता सकते हो? मैंने यही बोला है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऑल आर बिजी इन बॉन्डिंग, लाइक दी कार्बन की अगर आपने इसमें एक डायमंड का बना दिया तो डायमंड अगर आप लगाएंगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि हर एक कार्बन बिजी है बॉन्डिंग में, हर एक 4 अदर कार्बन से बॉन्ड बना है, तो आप कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए वो नहीं करेगा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि फिर से मैं बोल देता हूँ यहाँ पे एक बार और समझा देता हूँ कि सपोज कीजिए कि आपने एक पाइप लिया, इस पाइप में आप सपोज कीजिए कुछ बॉल्स ले लीजिए, बॉल्स, दीज बॉल्स, नाउ यू पेस्ट दिस बॉल विद सम ग्लू, आप इन ग्लू से इन बॉल्स को पेस्ट कर दीजिए या चिपका दीजिए इनके बीच में, दे आर नाउ बॉन्डिंग, इनमें बिजी है। अब आप इसका एक एंड ऐसे कर दीजिए, तो क्या ये बॉल फ्लो मूव कर पाएंगे नीचे, बिकॉज दे आर स्टिक, चिपकी हुई तो नहीं फ्लो करेंगी। भले ही आपने इसमें एक एंड उसका हायर पोटेंशियल और दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल पर क्रिएट कर दिया है, तभी भी ये नहीं मूव करेंगे। तो इन बॉल्स का फ्री होना भी जरूरी है। लाइकवाइज एक इलेक्ट्रॉन में, एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री नहीं होंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगी? आप कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लीजिए, वो नहीं मूव करेगा। समझ आया? यस सर। इज देयर एनी डाउट किसी को? ओके, नाउ मूव फर्दर। सर एक मिनट, जी बताएं, ये कॉपी करना है? बस एक पॉइंट कॉपी करना है। ओके सर। Okay, done. Okay, now moving to the very important part, that is the electric potential and potential difference, and this is very important, we need to understood this one in detail. Okay, so चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ओके, देखिए बेटा, आपको जब भी कोई चीज का मेजरमेंट करना होता है तो आपको एक पॉइंट तो चूज करना होता है ना जहां से मेजर करेंगे, है ना? एक पॉइंट तो चाहिए होगा ना जहां से आप मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप, एक बॉल है, वो आपने हिट की बैट से जैसे ही आपने हिट की, आपको उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो पहले आप उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर वो आप कैमरे में ही मान लेंगे 2 पॉइंट्स कि ये इस टाइम पर किस मतलब इस पॉइंट पर किस टाइम पर थी, और फिर जब ये बॉल दूसरे में जाएगी तो यहाँ पर ये किस टाइम पर थी, और फिर फ्रेम के हिसाब से हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितने फ्रेम्स इसमें बने हैं, टाइम उसमें कैलकुलेट हो जाता है और डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे हम लोग स्पीड पता लगा लेते हैं। यानी कि किसी भी चीज को मेजर करना है, लेट सिंपल और सिंपल बनाता हूँ। सपोज कीजिए मुझे 2 जगह का डिस्टेंस मेजर करना है, मैं बोलता हूँ कि बताइए मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, ए पॉइंट का डिस्टेंस बताइए कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे? मैं बोलूं ए पॉइंट का डिस्टेंस बताइए, तो आपका सवाल होगा कि सर ए पॉइंट का डिस्टेंस आप मुझे बताइए कहाँ से मेजर करना है, इस पॉइंट से मेजर करना है, यहाँ से मेजर करना है, यहाँ से मेजर करना है, कहाँ से हम लोग ए पॉइंट को मेजर करें? ए पॉइंट का डिस्टेंस तो हमें पता होना चाहिए ना कि ए पॉइंट के बीच में। तो ऑलवेज जब भी हम लोग कोई चीज मेजर करते हैं, हम लोग 2 पॉइंट्स के बीच में कोई चीज को मेजर करते हैं, ठीक है एक्चुअली में। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कि हम लोग को कोई चीज मेजर करनी होती है किसी भी यूनिट्स में, जैसे मुझे मेजर करना है डिस्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर होती है। मीटर कहाँ से आया? खैर ये तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 सेकंड में जितना लाइट ट्रेवल डिस्टेंस करती है, दैट इज हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि मीटर को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं बोल सकता हूँ कि मीटर वो डिस्टेंस है जितना लाइट 1 अपॉन, या मैं सिंपल बोलूँ तो दैट इज, एक मिनट,
कि मैं बोल सकता हूँ कि 1 मीटर जो डिस्टेंस है, दैट इज द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1/299792458 सेकेंड। मतलब इतने सेकंड्स में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एक्चुअल स्पीड है लाइट की, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि वो लाइट की वो जो डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम लोग 1 मीटर बोलेंगे। खैर ये तो फालतू की बात है, मतलब है तो ये बात, एक्चुअल में तो 1 मीटर यही डिस्टेंस होता है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि चलो वो डिस्टेंस हमारे पास आया, ये डिस्टेंस आया और हम लोग मान लेते हैं कि ये 1 मीटर डिस्टेंस है। अब आप जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो इसी के रेस्पेक्ट में तो मेजर करेंगे ना। आपने एक पैमाना बना लिया, पहले आपने एक मेजरमेंट बना लिया कि ये हमारे पास आर्बिट्री, हम लोगों ने इसको चूज कर लिया है कि अब ये हमारे पास आर्बिट्री है। हम लोगों ने चूज किया कि ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये कहीं पर लिखा नहीं था, हम लोगों ने अपनी मर्जी से कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बैठे और हम लोगों ने चूज कर लिया कि भाई आज से 1 मीटर डिस्टेंस जो होगा वो इतना होगा। सारी कंट्रीज के लोग आइए, अपना अपना स्केल इससे मेजर कीजिए और ले जाइए अपनी अपनी कंट्री, अपनी लेंथ इसी से मेजर कीजिएगा। और कुछ ईयर्स के बाद फिर से आइएगा, फिर से एक बार फिर से चेक कीजिएगा कि आपके स्केल में कोई कुछ इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हुआ है, तो फिर से इसी को मेजर कीजिएगा और फिर से लेंथ मेजर करने के लिए, मतलब हमेशा आपको इसी स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया कि ये लेंथ 1 मीटर है और इस लेंथ से आपको कंपेयर करना है। इसी तरह से हम लोगों ने मान लिया कि एक बॉक्स इतना ये हैवी बॉक्स है, आज से मैंने इसको बोल दिया कि ये 1 kg है। अब इसी के कंपैरिजन में आपको अपनी अपनी कंट्री से आइए और 1 kg मास इसके बराबर आप वेइंग करिए और ले जाइए अपनी कंट्री में, और फिर जितना भी मास मेजर होगा वो इसके कंपेयर में होगा। अगर इसका 2 टाइम्स हुआ तो हम लोग उसको 2 kg कह देंगे, इसका 1/1000 टाइम्स हुआ तो हम लोग उसको 1 ग्राम कह देंगे, ठीक है। वी विल कंसीडर इट एज 1 ग्राम। सो हम लोग को जब भी कोई चीज मेजर करनी होती है, हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट पहले कंसीडर करते हैं कि हम लोग को कैसे स्टैंडर्ड मानना होगा। तो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करना था। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग को, जैसे मैंने बोला कि लाइट क्या है, इट इज 1 मीटर क्या डिस्टेंस है, 1 मीटर इज एक्चुअली वो डिस्टेंस है जो लाइट 299 जो मैंने यूनिट लिखी थी अपॉन करके, ठीक है। या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं कि 3 × 10⁸ सेकंड्स में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, 1 अपॉन इतने सेकंड्स में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम लोग 1 मीटर बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने अलग अलग चीजों की डेफिनेशन बनाई है। इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि अगर सपोज कीजिए कि आप एक 10 सेंटीमीटर का क्यूब ले लीजिए, कि 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो, 10 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ हो और 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 लीटर। और आप सभी लोग आइए उससे अपना अपना कंपैरिजन कीजिए और ले जाइए और उसके हिसाब से आप मेजर कर लीजिए। सो ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। हमारे पास अलग अलग चीजों की यूनिट होती है। जैसे मुझे एटॉमिक मास को मेजर करना है, तो एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास की भी तो डेफिनेशन है ना, कि 1/12 कार्बन, 1/12 पार्ट, यानी अगर मैं कार्बन एटम का ले लेता हूं और कार्बन एटम के 12 पार्ट कर दूं, तो उसमें से एक पार्ट जो होगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 मतलब कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, तो कार्बन 12 वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो जो पार्ट होगा वो हम लोग कंसिडर करेंगे कि हमारे पास स्टैंडर्ड पार्ट है, हम लोग सारे जितने भी एटम्स होंगे इससे कंपेयर करेंगे। जैसे किसी का मास 16 AMU है, ऑक्सीजन का मास 16 AMU है, तो उसका मतलब हुआ 16 इंटू दिस इज 16 टाइम्स द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। यानी ऐसे ऐसे 16 पार्ट जब होंगे तो वो 1 कार्बन एटम 1 ऑक्सीजन एटम के बराबर होंगे। तो इस तरह से हम लोग को हमेशा एक स्टैंडर्ड पहले मानना पड़ता है किसी भी मेजरमेंट को फिजिक्स में करने के लिए, और फिर उससे हम लोग कंपेयर करते हैं हर चीज को, उसी से हम लोग को कंपैरिजन करना होता है। तो हम लोगों ने जो हमारे बैटरी है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग को एक आर्बिट्री मानना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो हम लोगों ने माना कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे बेटा। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है और उस चार्ज को हमने एक सेंटर पे रखा है, मतलब रखा है, तो उस चार्ज का कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे ग्रेविटी होती है, अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ये सपोज कर लो, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। इन द सिमिलर वे चार्ज, अगर हम लोग कोई चार्ज को रखते हैं तो चार्ज के चारों तरफ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जहां तक वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है। हर चार्ज बॉडी एक दूसरी चार्ज बॉडी पर फोर्स लगाती है, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स है चाहे वो रिपल्शन फोर्स है, और जहां तक वो उसकी फोर्स लगती है उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे अर्थ जहां तक किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकती है उसको हम लोग बोलेंगे कि वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहां से वो अट्रैक्ट करना बंद कर देगी हम बोल देंगे कि यहाँ पे अब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। और जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, मेरी बात एक एक चीज बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, जब भी हम लोग कोई वर्क करते हैं, वर्क
तो वर्क की यूनिट होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग फोर्स कहाँ पे लगाते हैं? अगेंस्ट द फोर्स। हम लोग वर्क जो भी करते हैं वो अगेंस्ट द फोर्स, यानी जो हमारे पास अपोजिंग फोर्स होती है उसके अगेंस्ट हम लोग काम करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको कार चलानी है, तो कार में जो आप पेट्रोल डाल रहे हैं वो किस लिए डाल रहे हैं, उसको क्यों पेट्रोल डालते हैं? बिकॉज आपकी कार को एक काम करना है, किसके अगेंस्ट? फ्रिक्शनल फोर्स के। अगर आपकी कार मूव कर रही है इस डायरेक्शन में आपकी कार मूव कर रही है, तो आपको उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगेगी, वो इस डायरेक्शन में, यानी कार को वो मना करेगी आगे मूव करने में। तो आपको ये जो अपोजिंग फोर्स है, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, इस फोर्स के अगेंस्ट काम करना है, और उसी को हम लोग वर्क डन बोलते हैं। हमेशा हम लोग को, अगर मुझे सपोज कीजिए ये एक हैवी बॉक्स है, अगर मुझे इस बॉक्स को मूव कराना है तो मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा इस डायरेक्शन में। क्यों लगाऊंगा इस डायरेक्शन में? क्योंकि इस पर एक अपोजिंग फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। जैसे मैं, तो मुझे अपोजिंग फोर्स के, अगर मुझे वर्क डन करना होता है तो हमेशा अपोजिंग फोर्स के करना होता है। जहां पर फोर्स ही ना हो वहां पे कोई वर्क डन नहीं होता। जैसे सपोज कीजिए कि आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गए, ये अर्थ है, ये उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, आप यहाँ पर हैं, तो अब आपको कोई फोर्स नहीं लगानी, क्योंकि अर्थ का कोई यहाँ पर कोई वैक्यूम है, यहाँ पर कोई हवा नहीं है जिस पे आपको अपोज लगे या फिर मतलब अपोजिट फोर्स करना पड़े। तो आप क्या करते हैं? सिंपल, आपने एक बार उसको स्टार्ट कर दिया तो देन इट विल बी कंटिन्यूअसली मूविंग। यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, बिकॉज यहाँ पर कोई फोर्स, अपोजिंग फोर्स नहीं है। इसलिए हम लोग अपने जितने भी रॉकेट्स वगैरह होते हैं उसको एक बार छोड़ते हैं, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से पास करने के बाद हम लोग उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जहां भी हम लोग को मार्स पे या कहीं भी हम लोग को भेजना सके, उसको ये मार्स से बहुत दूर है, तो हम लोग उसको सिंपल एक डायरेक्शन में छोड़ करके और उसको इसकी तरफ सेट करके भेज देते हैं। यानी कि फिर उसके बाद इंजन को बंद कर देते हैं कि हम लोग को सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से पार कराने के लिए, यानी अपोजिंग फोर्स को, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी और हम लोग को उसको उससे अगेंस्ट ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये फोर्स खत्म हो जाएगी तो हम लोग को कोई एनर्जी नहीं चाहिए, फिर हमारा रॉकेट अपने आप चलता रहेगा। हम लोग अपने इंजन भी बंद कर देंगे तब भी वो चलता रहेगा। तो यही चीज इसके अंदर भी होती है कि चार्ज क्या है। चार्ज हमने माना कि हमारे पास सपोज कीजिए एक चार्ज है, उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है जो कोई कहीं दूर पर रखा हुआ है। ध्यान समझना बेटा, कहीं दूर रखा हुआ है, और यहाँ पर इस पर कोई चार्ज नहीं लग रहा, यहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब इसका इन्फ्लुएंस सिर्फ यहाँ तक है। ये जो बाउंड्री दिख रही है इसका इन्फ्लुएंस सिर्फ यहाँ तक है। ये जो चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज है और एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस चार्ज को मैं यहाँ ले जाऊं, कहीं भी ले जाऊं, इसके बाहर, वहां पर मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर फोर्स नहीं लग रही, वहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वहां पर इस चार्ज की कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो यहां तक अगर मैं लेके आता हूं तो कोई वर्क डन नहीं करना। और ये पोर्शन जहां पर इसकी फोर्स नहीं लगती उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट पोजीशन। यानी वो जगह जहां पर इसका चार्ज, इस वाले चार्ज का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए तो वो दूसरे चार्ज के लिए इनफाइनाइट पोजीशन हो जाती है। विल कंसीडर दैट इट इज इनफाइनाइट पोजीशन, इनफाइनाइट। तो हम लोग मान लेते हैं कि सपोज कीजिए मैं यहां तक कोई चार्ज को लेकर के आ गया, अभी तक मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करूंगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करना शुरू कर देगा, यानी इट विल रिपेल इट, ये इसको रिपेल करेगा। और मुझे जबरदस्ती अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को ला करके रखना है, सपोज करो मुझे ए पोजीशन पर ला कर रखना है, तो उस ए पोजीशन पर लाने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इस अपोजिंग फोर्स के लिए। यहां तक मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता क्योंकि यहाँ पर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, लेकिन यहां से जैसे एंटर करूंगा और मैं यहां पर लेके आऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग, मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा एक अपोजिंग फोर्स के खिलाफ, मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा जो कि ये मना कर रहा है कि मेरे फील्ड में नहीं आओ, तो मुझे एक वर्क डन करना पड़ेगा, जबरदस्ती लाना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि मैं वो वर्क डन करके इस पॉइंट को यहाँ पर पहुंचा सकता हूँ, तो मेरा वर्क डन अब इसके अंदर स्टोर्ड हो गया। जैसे एक स्प्रिंग है, ये मेरे पास स्प्रिंग है, मैंने इस पर वर्क डन किया और मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने पर मैंने जो इसमें वर्क डन किया, अब ये स्टोर हो चुका है इसके अंदर मेरा वर्क डन। अब इस वर्क डन से मैं कोई और दूसरा काम करवा सकता हूँ, यानी स्प्रिंग की मदद से कोई दूसरा काम करा सकता हूँ। जब ये एक्सपेंड होगा तो ये इसके अंदर स्टोर्ड हो चुका है मेरा वर्क डन। तो इसी तरह से मैंने जो वर्क डन किया है इस चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए, वो मेरा वर्क डन इस पोजीशन पर स्टोर्ड हो चुका है। ठीक है, और मान लेते हैं कि वो मैंने सपोज कीजिए कि 20 जूल मैंने वर्क किया है, लेट सपोज कीजिए मैंने 20 जूल किया है, और मैंने 1 कूलम चार्ज को मैं लेके आया हूँ और मैंने 20 जूल वर्क डन किया है। मेरे पास 1 कूलम चार्ज था, मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आया और मैंने 1 जूल काम किया है, 1 जूल सपोज, सॉरी एक कूलम चार्ज है, मैंने 20 जूल काम किया। तो अब बस समझ में आने वाला एकदम, मतलब होप नहीं छोड़िएगा, बिल्कुल समझिएगा बिल्कुल ध्यान से।
तो मेरा मान लेते हैं कि ये 20 जूल वर्क डन मैंने इसको किया, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 20 जूल होगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे सपोज कीजिए कि आपने एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पर आप कोई स्टोन, एक हैवी स्टोन आप लेकर के गए और आपने इसकी पॉइंट पर यहाँ पर वो रख दिया, तो आपका जो वर्क डन यानी इस पर आपने जो लेके गए इस स्टोन को इस बिल्डिंग पर, उसमें ले जाने के लिए जो आपने वर्क डन किया वो mgh के बराबर होगा, यानी मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, जिसको हम लोग इसका पोटेंशियल वो कहेंगे। आप इस वर्क डन को यूज कर सकते हैं, आप वापस से इसको गिरा दीजिए, इस एनर्जी को कन्वर्ट कर लीजिए काइनेटिक एनर्जी में, या फिर टरबाइन घुमा लीजिए, इससे कुछ भी आप कर लीजिए, इसके पास स्टोर हो चुका है, ये वापस इस पोजीशन पर जाएगा, ये उतना काम कर देगा। सो हम बोलते हैं कि सपोज कीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 जूल है, ठीक है। सो यही वर्क डन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, जो आपने काम किया एक चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से यानी इनफाइनाइट जगह से लाने में किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपने काम किया, उसको हम लोग उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। सो हम बोलेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो आपने काम किया है किसी एक चार्ज को लाने में, कहां पर, किसी एक पॉइंट पर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी मैं इसमें कंसिडर कर लेता हूं कि मुझे कोई भी एक पॉइंट पर लाना है, तो वो जो पॉइंट मेरे पास होगा, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट पर मेरे को लेकर आना है, तो मैं जो भी काम करूंगा इस पॉइंट पर लाने के लिए वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। एक बात याद रखना कि पोटेंशियल जो होता है वो पॉइंट का होता है। आप इसको कैसे भी लेके आइए, चाहे आप इसको कैसे भी लेकर के आइए, आप इसको ऐसे लेके आइए तब भी उतना ही होगा, आप इसको डायरेक्ट लेके आइए तब भी उतना ही होगा। पोटेंशियल का पॉइंट होता है, जैसे आप इस पत्थर को आप लेफ्ट से लेकर आइए तब भी उतना ही mgh वर्क होगा, क्योंकि हाइट से मेजर होता है, चाहे आप इसको रोलिंग करके लेकर आइए तब भी उतना ही mgh वैल्यू होगी। तो पोटेंशियल जो होता है इट इज ऑफ द पॉइंट, कि मुझे इस पॉइंट पर लाने में इतने जूल वर्क डन करना पड़ेगा, तो मुझे वो करना ही पड़ेगा, तभी वो इस पॉइंट पर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मैं बोलता हूं कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये वो वर्क डन है जो किसी भी यूनिट चार्ज को, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, को लाने में, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाने में यूज किया जाता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। या मैं इसको डेफिनेशन में बोलूं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पोजीशन, यानी इनफाइनाइट मतलब जो बहुत दूर है, इनफाइनाइट पोजीशन टू अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि चार्ज जब आप लेकर के आएंगे उसको एक्सेलरेशन नहीं कराना है, क्योंकि जब आप एक्सेलरेशन कराते हैं तो चार्ज अपनी एनर्जी को लूज करता है। तो एनर्जी को लूज ना करे, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लेकर आइए, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम बोलेंगे विदाउट एक्सेलरेटिंग। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि जब आप किसी एक चार्ज को इनफाइनाइट जगह से किसी एक पॉइंट पर लेकर आए, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए, उसमें जो वर्क डन आप करेंगे किस अपोजिंग फोर्स के खिलाफ, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ आया? समझ आया कि नहीं आया बेटा? बोलिए फटाफट से, हाँ या ना? फिर से बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो आप किसी एक चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी इनफाइनाइट जगह, वो जगह जहां पर दूसरे चार्ज का इन्फ्लुएंस ना हो, इनफाइनाइट जगह से लाने में जो आप वर्क डन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, उसको जो वर्क डन करेंगे उसको मैं बोलूंगा कि ये उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सपोज कीजिए कि आपने यहां पर ये 20 जूल वर्क डन किया, सपोज कीजिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? आपने 1 कूलम चार्ज लेकर आए, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा क्यूब अपॉन, सॉरी, W अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू। सो अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना, आपने 20 जूल वर्क डन किया है और आपने 1 कूलम चार्ज लेकर के आए, तो 1 कूलम चार्ज हो गया, तो जैसे आप इसमें करेंगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज 20 वोल्ट। क्या आपने 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है, 20 वोल्ट। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं। सपोज कीजिए कि यहां पर आपने एक पॉइंट लेकर आया, आपने इस पॉइंट का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, और यहां पर आपके पास दूसरा पॉइंट है, लेट्स सपोज इट इज 40 वोल्ट, या मैं मान लेता हूं 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट है। सपोज कर लो, मान लो, कंसीडर कर लो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 50 वोल्ट है। सो अगर आपको इस जगह से इस जगह पर चार्ज को लेके आना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पर एक पत्थर रखा हुआ है और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज 20 जूल, और एक और बिल्डिंग है अभी,
और इस पॉइंट पर आपको लेके जाना है और इस पॉइंट का पोटेंशियल है 50 जूल। तो बताइए अगर आप इसको यहां से यहां लेके जाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा आपको? टेल मी। अगर आपका 20 जूल के पोटेंशियल पर कोई स्टोन रखा हुआ है, आपको उसको 50 जूल के पोटेंशियल पर लेके जाना है, तो बताइए आप कितना काम करेंगे उस पर पहुंचाने के लिए? बोलिए। विल इट बी 30 ना? 30। 30 करना पड़ेगा ना, 20 तो पहले से ही हो रखा है, 30 यानी डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, सो 30 आपको करना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। एक चार्ज आप कोई एक पॉइंट पे कंसीडर कर लीजिए, उस चार्ज को आप एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिक फील्ड में ही लेके जा रहे हैं, आप कहीं बाहर से नहीं ला रहे। यू आर नॉट ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, अलग से नहीं ला रहे आप। सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो भी वर्क डन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, विदाउट एस्केलेटिंग, बिना उसको एस्केलेट किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स या टू पोटेंशियल्स in the electric field, and electric potential is that work done, वो वर्क डन होता है जो आपने इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी एक चार्ज को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर के आए हैं, तो उस पॉइंट के पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो डेफिनेशन तो आपको ऐसे ही याद करनी होगी, एग्जैक्ट यही डेफिनेशन मेनली आती है। तो डेफिनेशन तो आपको यही याद करनी होगी, that it is the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to a point in an electric field। किसी भी पॉइंट पर आप लेके आएंगे। ओके, सो ये वो वर्क डन होता है जब आपने किसी एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट जगह, इनफाइनाइट मतलब जहां पर इसका इन्फ्लुएंस ना हो, इस चार्ज का इन्फ्लुएंस ना हो, तो वहां से लाने में जब आप वर्क डन करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहां तक तो आप कहीं भी ले जाइए कोई वर्क डन नहीं करना, तो जैसे इसकी सरफेस में एंटर करेगा तब आपको वर्क डन करना है। तो वो जो वर्क डन करने में, यानी कि आपको किसी एक पॉइंट पर चार्ज लाना है, सपोज कीजिए कि आपको चार्ज यहाँ पर लाना है, आप इस चार्ज को यहाँ पर लेकर के आए, आपने वर्क डन किया, जितना भी वर्क डन किया, आपने एक कूलाम चार्ज कंसीडर कर लिया, आपने 20 जूल का वर्क डन किया, तो दैट वुड बी कंसीडर कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट हो जाएगा, 20 वोल्ट। फिर आप दूसरी बार एक चार्ज को लेकर आए, आपने यहाँ पर इसको रखा, सपोज कीजिए कि ये वो आपके 30 वोल्ट, यानी 30 वोल्ट इस पॉइंट का पोटेंशियल है। सो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है बी, इस पॉइंट का पोटेंशियल ये है ए, ये है 20, ये है 30, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जो इन दो टर्मिनल्स, यानी जब आप ए से बी पर कोई चार्ज लेके आएंगे उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। समझ में आया? एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि इस स्टेटमेंट में तुम्हें कहां पे कोई चीज समझ में नहीं आई। एक बार स्टेटमेंट को पढ़े बेटा, ट्राई करें, एक बार कोशिश करें कि इस स्टेटमेंट में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये सिंपल से डेफिनेशन है, बहुत बार आती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना होता है चार्ज को, उसमें जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, आपको एक पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पोजीशन है और दूसरी पोजीशन है, आपको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चार्ज लेके जाना है, वो जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैटरी है आपके पास, उस पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट, तो इसका मतलब है कि इसका एक पोटेंशियल और दूसरे पोटेंशियल में जो डिफरेंस है दैट इज 12 वोल्ट। हो सकता है कि ये 80 हो, इस वाले का पोटेंशियल 80 हो, तो इस वाले का कितना होगा, दैट विल बी ऑफ 68। ठीक है, हो सकता है कि इसका 24 हो और ये 12 हो, तो डिफरेंस कितना होगा 12। सो कुछ भी हो सकता है, इट इज 14, ये 2, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 12। तो 12 इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। समझ में आया? समझ Yes, sir. आया बेटा? यस सर। आप देखते हैं कि एक बैटरी हमारी बहुत देर तक चलती है, एक बैटरी हमारी है 12 वोल्ट की ही, लेकिन एक बैटरी बहुत टाइम तक चल जाएगी, एक बैटरी बहुत देर तक कम तक चलेगी। सो वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना कितना है। तो वही डेफिनेशन के दो टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस है वो उतना है, लेकिन कितनी कैपेसिटी तक वो उसको चला सकता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विदाउट एस्केलेटिंग। अब बात करते हैं कि अब आप बताइए दोनों की यूनिट्स में डिफरेंस।
यूनिट्स में क्या क्या डिफरेंस होगा? सो अगर मैं कंसिडर करता हूं कि आपसे बोलता हूं कि मैं इफ आई एम कंसिडरिंग कि आप किसी मार्केट गए एंड यू फाइंड दैट इज 5 kg एप्पल्स, you buy 5 kg apples and out of that you give the 2 kg apple to a beggar. Okay, then how much will be the remaining apple? बताइए कितना होगा रिमेनिंग एप्पल? 3. 3 kg ना? Yes sir. तो 3. 3 kg, तो ये भी kg है, ये भी kg, ये भी kg है. सो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट जो होती है, दी एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट. वोल्ट है जिसको हम लोग कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, जो अपने चार्ज को लिख करके आए हैं. सो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है अगर वोल्ट है तो उसका डिफरेंस की यूनिट भी वही होगी. जैसे केजी में से केजी को माइनस करोगे तो केजी आंसर आएगा. तो बोथ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है द सेम यूनिट. The SI unit of both electric potential and electric potential difference is volt and denoted by capital V. इसको हम लोग डिनोट करते हैं V electric potential is equals to work done upon charge, that is W upon Q, and we can write it like this way. अब ये जो यूनिट है हमारे पास that is W by Q and that is 1 coulombs per 1 जूल. वर्क डन की यूनिट होती है जूल और सेकंड. कई बार ये आपको ये भी पूछ लेगा कि बताइए एनर्जी कैलकुलेट कीजिए. तो एनर्जी बेटा वर्क डन की यूनिट को ही एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी भी बोलते हैं. तो कई बार एनर्जी को पूछेगा, आपसे बोलेगा नहीं वर्क डन, आपको बोल देगा फाइंड कैलकुलेट द एनर्जी व्हेन 2 कूलम्ब चार्ज passes through a conductor at a potential difference of 5 volt. Calculate the energy when 2 coulomb charge passing through a conductor at a potential difference of 5 volt. So आप पूछेंगे यार एनर्जी के तो सर ने पढ़ाया नहीं. एनर्जी एंड वर्क डन इज सेम. So we can write V is equals to W is equals to V into Q, and then it will be 5 into 2, that would be the 10 joule. समझ आया? Yes sir. Yes sir. तो इस तरह से energy and potential difference are the same unit. Okay, got it? Yes sir. चलिए एक न्यूमेरिकल आप ये मुझे कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर आएगा. आपके सामने न्यूमेरिकल है, करिए कितना आंसर आएगा. Calculate the amount of work done in moving 10 raised to the power 20 electron across a potential difference of 10 volt. Calculate the work done in moving. वर्क डन या एनर्जी कुछ भी बोल सकते हैं आपसे क्वेश्चन में. इन मूविंग 10 raised to the power 20 electrons across a potential difference of 10 volt. कैलकुलेट कीजिए. मैं देता हूं आपको 5 मिनट्स सॉल्व करने के लिए. अरे ज्यादा टाइम हो गया भाई, मैं ही सॉल्व कर देता हूं. ओके, सो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग. अब आपको पता है कि V इज इक्वल टू होता है W by Q. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना, इसमें चार्ज तो कहीं नहीं दे रखा. तो Q को आप स्प्लिट कर लीजिए. V इज इक्वल टू W अपॉन N इंटू E, क्योंकि Q की जो वैल्यू होती है वो होती है N इंटू E. अब आपको कुछ नहीं करना, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं. सो एक काम कीजिए, N को आप इस तरफ ले जाइए और V को आप नीचे लेकर आ जाइए. तो ये हो जाएगा W, नहीं आपको वर्क डन पता करना है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन है, आपको W पता करना है. तो यू कैन राइट इट V इंटू N इंटू E इज इक्वल टू W. V into N into E is equals to W. Now you can write that work done आपको कैलकुलेट करना है. V आपको पता है that is 10 volt. N आपको गिवन है that is 10 raised to the power 20 into इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 raised to the power minus 19. तो वर्क डन आपके पास कितना आ जाएगा, ये दोनों मिलके हुए 10 की पावर 21 और फिर ये minus 19. 21 minus 19 you will get 1.6 into 10 raised to the power positive 2. Okay, or you can write it work done is equals to 160 joule. समझ आया? So it should be 1600 joule, right?
नहीं बेटा 1600 नहीं होगा, 21 ये यहाँ पर है ना डेसिमल, सो 1.6 इंटू 10⁻² आया है, तो आप इसका मतलब 1.6 इंटू 100 एंड दैट वुड बी 160। ओके सर फिर से बोल सकते हो सर? देखो यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 10⁻21 पॉजिटिव, यस 10⁻21 यहाँ ये 10⁻21 आया है, और 10⁻21 into 10⁻−19 you will get 10⁻+2 हाँ ओके into 1.6 तो पहले से